बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड कूलम्ब लॉ इन अ मटेरियल मीडियम, राइट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कल का जो लेक्चर था इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट डज इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को भी डिस्कस किया और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। और आखिर में हमने कूलम को डिफाइन किया कि द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, राइट। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और 1 कूलम चार्ज कितना होता है? इट इज द चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन 1 second, right? A charge transported by a current of 1 ampere in 1 second। या इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि it is charge on 6.2 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 कूलम के बराबर है। तो स्टार्ट लेते हैं कूलम्स लॉ से कि व्हाट इज Coulomb law. It states that the magnitude of the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them, right? What is point charges? By point charge, we mean a very small charge. Point charge mean very small charge concentrated at a single point. Concentrated at a point. So here by point charge we mean a very small charges. अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कंसिडर we have two charges Q1 and Q2 separated by small distance R. So according to the definition, so the electrostatic force, the magnitude of the electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of charges। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं। लेट्स से एक हमारे पास जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरा हमारे पास चार्ज है वो Q2 है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है R, right? R is the distance between them. So the electrostatic force between these two charges, अब हम ये डिस्कस नहीं करते कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन the charge type, whether the charge is positive or negative. So, and secondly, the force, electrostatic force, is inversely proportional to the square of the distance between the charges. Here, R is the distance between the charges. तो अगर इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। और इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि F is equal to K Q1 Q2 by R square, right? K Q1 Q2 divide by R square। अब यहाँ पे K क्या है? K is known as Coulomb constant। K is a constant known as Coulomb constant, right? Coulomb constant. So its value is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught is basically it is called the permittivity of the free space।
permittivity of free space, right? It is epsilon naught is the permittivity of free space. What does we mean by permittivity, right? So permittivity basically describe permittivity परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब हम जनरल बात करते हैं परमिटिविटी की. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या फ्री स्पेस, इधर तो हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन इन जनरल परमिटिविटी इज बेसिकली permittivity is basically what it basically describe. It basically describe the opposition of the medium, the opposition of medium और फ्री स्पेस, द पोजीशन ऑफ मीडियम. या इधर हम फ्री स्पेस की बात करते तो हम फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ द मीडियम और फ्री स्पेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बेसिकली हमें क्या कहते हैं, द पोजीशन ऑफ द मीडियम to electric field, or we can also say that permittivity basically describe how the electric field interact or how the medium interact with the electric field. So for the free space, its value is for the free space, this the value of the epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12 Coulomb square per Newton meter. So this is the lowest value of the permittivity of any medium. अगर हम ये वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास इधर, अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी, इट इज 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर. इधर ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कूलम कांस्टेंट, राइट. तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा वो कर दे, वेक्टर फॉर्म को ले ले, so in terms of permittivity of the free space, the Coulomb force is written as F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, right. अब देखिए, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो ये फोर्स जो है ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. इसी तरह अगर हम एक चार्ज को डबल करते हैं तो ये डबल हो जाएगा. अगर दोनों को हम डबल करते हैं तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है. अगर हम आर को हाफ करें तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर चार्ज को हम डबल करते हैं तो ये डबल हो जाता है, अगर दोनों को हम डबल करते हैं तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है. लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है. दूसरी बात यह है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर अपोजिट चार्जेस. यानी अगर हमारे पास दो अपोजिट डिसिमिलर चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो द कूलम फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर अपोजिट चार्जेस while it is repulsive for similar charges. For similar charges, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है, सो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव, राइट. अब हम जाके थोड़ा सा इस जो कूलम लॉ है और कूलम फोर्स है, इनके वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं. तो इन वेक्टर फॉर्म the Coulomb force between the 2 point charges is written as if in vector form, right. The Coulomb force between two charges is written as, इसको हम K भी लिख सकते हैं 1 over 4
बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो 1 Q2 R स्क्वायर, राइट, R12। इधर मैंने जो नोटेशन यूज किए हैं वो थोड़ा सा किताब में जो यूज हुए हैं, इधर 2 1 यूज हुआ है, 2 1। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि ये यहाँ पे जो हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं 1 2, तो इट मीन दैट इफ 1 2 इज द फोर्स दैट चार्ज Q1 exert on charge Q2, चार्ज Q1 exert on चार्ज Q2। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में जो इस को डिफाइन किया गया है, ये जस्ट कन्वेंशन है। इसको यूज लिखा है कि इट इज द फोर्स दैट Q2 exert on चार्ज Q1। तो इसको आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कि if 1 2 is the force that 1 exert on 2, right? And R12, it is a unit vector pointing in the direction from charge Q1 to charge Q2. This is always in the direction of force. So in vector form, between the Coulomb force between the two charges Q1, Q2 is written in this form. Here, चार्ज Q1, अगर हम ये वाला केस ले लें कि चार्ज Q1 भी पॉजिटिव है, चार्ज Q2 भी पॉजिटिव है, तो इफ 1 2 कौन सा फोर्स है? इफ 1 2 इज द फोर्स दैट Q1 exert on Q2, so it is in this direction, right? It is in this direction because both are positive charges, they repel each other. So this is if 1 2, यानी चार्ज Q1 क्या करता है? इसको रिपेल करता है। एंड R12 क्या है? R12 is the unit vector pointing in the direction of the force F12, pointing in the, यानी it is direct in the direction from the charge Q1 to Q2. Similarly, वो force F21, F21 is the force that charge Q2 exert on charge Q2. So again, it is 4 by epsilon naught Q1 Q2 R square R21। का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इफ 21 R21 क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F21, यानी इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। अब ये वाला फोर्स है, अब देखिए ये Q2 जो है Q1 को रिपेल करता है, Q2 क्या करे? Q1 को रिपेल करे। सो दिस इज F21 and R21 क्या है? R21 is a unit vector in the direction from the charge Q2 to charge Q1। लेकिन once again मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे जो बुक में लिखा गया है वो कन्वेंशन थोड़े से इसके अपोजिट है, यानी वो F12 को कैसे डिफाइन करते? द चार्ज दैट Q2, द फोर्स दैट चार्ज Q2 exert on Q1। अगर 21 को कैसे डिफाइन करते? द फोर्स दैट Q1 exert on Q2। अब देखिए ये अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, अगर हम यहाँ पे दोनों नेगेटिव, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्जेस। अगर हम नेगेटिव चार्जेस ले ले, यानी ये भी हमारे पास नेगेटिव है, ये भी हमारे पास नेगेटिव, तो फिर भी ये फोर्सेस इस तरह होंगे। Q1 क्या करेगा? Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। सो दिस इज द फोर्स F12, right? And this is the force F21। so ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम लिख दे या इस डायग्राम को हम शो करें फॉर द अपोजिट चार्जेस, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इफ 1 2 का डायरेक्शन जो पहले इस डायरेक्शन में था, जो पहले इस डायरेक्शन में था, अब वो इस डायरेक्शन में है। दे आर अट्रैक्टिव। चार्ज Q1 अट्रैक्ट द चार्ज Q2, राइट? दिस इज इफ 1 2। If 1 2 is the force that charge Q1 exert on charge Q2, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस है तो ये क्या करता है? इस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स F12 क्या है? It is the force that charge Q1 is exert on charge Q2।
तो अब जो R12 है, R12 का डायरेक्शन भी ये होगा, यानी R1 जो यूनिट वेक्टर है ये किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स F12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर R21 जो है shows the direction of the force F21, right? तो अब ये जो फोर्सेस है F12 या F21, मतलब जिस तरह हम न्यूटन थर्ड लॉ में वो डिस्कस करते हैं कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो लाइक ऑल अदर फोर्सेस, लाइक लाइक ऑल अदर फोर्सेस, लाइक ऑल अदर फोर्सेस, कूलम कूलम फोर्स also also obey Newton third law. Newton's third law. What does it mean? It means that the force, if one to कौन सा force, that charge one exert on charge Q2, irrespective whether it is repulsive or attractive, is equal to minus F21. The force that charge Q2 exert on one. F12 क्या है? It is the force that one exert on two. It is the force that two exert on one. So according to Newton third law, the magnitude of these two forces are equal, but their direction are opposite. अब देखिए यहाँ पे बाज औकात क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास लेट से Q1 जो है, Q1 हमारे पास से 2 माइक्रो कूलम है और Q2 हमारे पास से 8 माइक्रो कूलम है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फोर्स 1 2, यानी इसमें ऑप्शन में ये है कि फोर्स 1 2 ज्यादा है या 2 1 ज्यादा है या दोनों बराबर है। तो अब देखें, अगर इस इक्वेशन को हम देखें, ये चार्ज जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज 8 माइक्रोकूलम के ऊपर जितना फोर्स लगाता है वो बिल्कुल उतना ही है जितना 8 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के ऊपर एग्जर्ट करता है। सो बोथ ऑफ दीज फोर्सेस, यानी द फोर्स दैट Q1 exert on Q2 और Q2 exert on Q1, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहाँ पे जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इनका प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये फोर्स इफ 1 2 में भी हम Q1 और Q2 मल्टीप्लाई करते हैं और इफ 2 1 में भी हम Q1 और Q2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स that charge Q1 exert, magnitude of force that charge Q1 जो इस केस में हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है, एंड चार्ज Q2 एंड चार्ज Q2 जो हमारे पास 8 माइक्रोकूलम है, दे आर इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट चार्ज Q1 जो इस केस में 2 माइक्रोकूलम है और चार्ज Q2 जो 8 माइक्रोकूलम, और इक्वल, राइट? ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन इनका डायरेक्शन जो F12 का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा F21 के डायरेक्शन का, राइट? तो अब अगर हमारे पास एक चार्ज बड़ा है दूसरा छोटा है, लेकिन इन ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम अभी तक हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो हमने ये कंसिडर किया है कि इन बिटवीन द टू चार्जेस क्या है हमारे पास, ये है फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। तो अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने फ्री स्पेस कंसिडर किया था, यानी एप्सिलॉन नॉट कंसिडर किया था। ये जो चार्जेस पड़े हैं, मतलब हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, और ये जो इधर जो स्पेस है, इस ये क्या है, ये वैक्यूम है,
या फ्री स्पेस है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर इनके दरमियान फ्री स्पेस की जगह वो हो, मटेरियल हो, तो फिर जो कूलम फोर्स है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। Most of the time in real life, there exists a material medium between the charges, right? There exists a material medium between the charges. यानी हमारे पास अभी तक जिस तरह पहले मैंने बताया कि मैंने जो डिस्कशन की वो ये है कि हमारे पास Q1 है, Q2 है, इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान फ्री स्पेस है। लेकिन रियल लाइफ में जो ज्यादातर हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो जब हम मटेरियल मीडियम एग्जर्ट करते इंसर्ट करते हैं बिटवीन द चार्जेस, तो इट बेसिकली रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स। तो इन केस ऑफ मटेरियल मीडियम, in case of material medium, in case of material medium between charges, coulomb or electrostatic force is, or electrostatic force is written as F is equal to 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square into और यूनिट वेक्टर, राइट। अब इधर हमारे पास ये जो एप्सिलॉन है, इट इज called the absolute permittivity or the permittivity of the medium. Epsilon is the permittivity of the medium. Permittivity of the medium. तो बेसिकली मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी यानी जितने भी हमारे पास जो मटेरियल है इनके परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, it is denoted by E, or it is the ratio of the permittivity of the medium divided by the permittivity of the free space. Here E is the permittivity of the medium, epsilon naught is the permittivity of the फ्री स्पेस। तो इसको हम यू भी कह सकते हैं। ये जो वैल्यू है ई आर की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ज्यादा होता है इससे। तो इस रेशो से हमारे पास जो वैल्यू आता है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसमें हम जो एप्सिलॉन है इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम ये वाला इक्वेशन 1 में इसकी ये वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास जो फोर्स है वो बन जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन और एंड एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, राइट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और आर क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन और N2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर N2 और यूनिट वेक्टर। तो अब अगर ये देखें, इधर मैं इसके साथ आसानी के लिए मटेरियल मीडियम डालता हूं कि इट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन केस ऑफ द मीडियम बिटवीन देम। ये है एप्सिलॉन और ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको मैं कहता हूँ फोर्स between the charges in case of vacuum और फ्री स्पेस। तो इधर अगर आप देखें
कि with the insertion of the dielectric material or some material, the Coulomb force decreases. The Coulomb force decreases, right? अब चूंकि ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो अगर इस फोर्स को हम डिवाइड करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तो ये जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन केस ऑफ मटेरियल मीडियम है, ये कम आएगा. सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि द इंजर्शन ऑफ material medium between charges reduce the magnitude of the Coulomb force, reduce the magnitude of Coulomb force between the charges, right? तो रिलेटिव परमिटिविटी तो हमने इधर भी डिफाइन किया इन टर्म ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो इनको इन टर्म ऑफ कूलम फोर्स भी हम लिख सकते हैं कि इट इज बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, राइट? सो it is the ratio of the force between the two charges in vacuum to the force between the two charges in case of material medium, right? चूंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा. अब थोड़ा सा हम जनरली एक दो पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो कूलम फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अगर इनके आप इक्वेशन को देखें तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. यानी कूलम, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक, दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. एक हमारे पास है कूलम फोर्स, जिसको हम लिखते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. दूसरा हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इफ जी, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास जी m1 m2 by r square. So this is just for your information, r square. तो ये दोनों फोर्सेस जो है दे आर कॉल्ड फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस. बोथ आर क्या है? फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस. ये मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था कि फोर्सेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं. यानी कांटेक्ट फोर्सेस वो है जिसमें दोनों जो ऑब्जेक्ट है दे physically contact each other like a force of friction is a contact force, right? लेकिन इसके ये जो दो फोर्स है कूलम फोर्स, इसमें अगर आप देखें तो ये जो चार्जेस है या ये जो मासेस है ये एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते. तो इस किस्म के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस, राइट? और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस. तो इसमें सिमिलरिटी क्या है कि ये भी फील्ड फोर्स है, ये भी फील्ड फोर्स है. और दूसरा सिमिलरिटी है, बोथ बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि द फोर्स वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. यानी ये कूलम फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, both forces vary with the square of the distance with the square of the distance between them. यानी अगर हम इस डिस्टेंस को डबल करें तो ये फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्सेस, चाहे ये कूलम फोर्सेस है चाहे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, they will decrease by factor of 4. यानी ये 1/4 हो जाएंगे. अगर इसको हम डबल करते हैं तो ये 1/4 r square हो जाएगा. So if we double the distance between the charges or the masses in case of the gravitational force, so the force decrease 4 times, right? इसी तरह अगर हम r को हम क्या करते हैं, r को हम हाफ करते हैं
तो ये फोर्स कितना इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा जो डिसिमिलरिटी है वो क्या है, डिस डिसिमिलरिटी जो है वो क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज, जो एफ जी है वो क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। और जो एफ सी है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ हो सकता है, मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव बिटवीन अपोजिट चार्जेस एंड रिपल्सिव बिटवीन सिमिलर चार्जेस। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत वीक फोर्स है एज कंपेयर टू द कूलम फोर्स। अगर हम मिसाल के तौर पर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेते हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, या हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर इसको हम कैलकुलेट करें एफ जी को, तो दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी कूलम फोर्स। तीसरा जो पॉइंट है कूलम फोर्स में, ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं ये हम सरफेस टू सरफेस लेते हैं, हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, सरफेस टू सरफेस। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन मास टू द सेंटर ऑफ अदर मास। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।